Here we go. Hello everyone, I'm Amit Singh, BTech Electronics from NIT Jalandhar, and today I'm teaching you a very important chapter, rotational motion, which is having great importance in various engineering and medical entrances. So I always start the chapter with the introduction. So the introduction, that is type of motion. So one is translational motion, another one is rotational motion. Now translational motion or the linear motion in which all the particles travel equal distance in equal time interval. That is, the whole body is moving with one speed. This speed is v. There are three particles A, B and C. So in time t, this A particle will reach here and the distance travel will be vt. Similarly, B will reach here. It is vt and C will also travel the same distance. This is pure translational motion, pure translational. जैसे साइकिल में लॉक लगा हुआ है और आपने हैंडल पकड़ के उसे खींचा, then all the particles travel equal distance in equal time interval. This is also known as pure slipping. Okay. Now second is rotational motion, which is the name of the chapter. In rotational motion, different particles inside the body performs circular motion in different concentric circles. For example, this particle A, the body is performing rotational motion. Whole body is performing rotational motion, but A is performing circular motion in a circle of this much radius. B, again performing circular motion with this much radius. Similarly, all the particles are performing circular motion in different concentric circles. But the body is performing rotational motion. Now, rotational motion about which axis? Now, about this axis. This is the axis. This is the axis passing through the center and perpendicular to the plane. This is the plane and this axis is perpendicular to the plane. This term is very important. I'll use this term axis of rotation, that is AOR, n number of times inside the in this chapter. Okay. So it is clear what happens in rotational motion. Different particles perform circular motion, और circular motion में तो हम बादशाह ही हैं. While whole body performs rotational motion. ठीक है, particles क्या करेंगे rotational motion में? Circular motion करेंगे. While the whole body performs rotational motion. ठीक है ना? जैसे एक पॉइंट पार्टिकल को हमने स्ट्रिंग से बांधा और घुमा दिया, तो उस पॉइंट पार्टिकल ने कैसा मोशन किया? सर्कुलर. अगर आपको बांधकर घुमा दिया जाए, देन यू विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन. पर जब आप रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे होगे तो आपके अंदर के बहुत सारे छोटे छोटे डीएम पॉइंट पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर कि एक्चुअली रोटेशनल मोशन की इमेज टफ है, बट ये तो सर्कुलर मोशन ही है. पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पर कि एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं. सो यू नो व्हाट इनर्शिया इज? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस फॉर चेंज. कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस फॉर द चेंज इन द रोटेशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस mi और I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी जैसा है वैसा ही रोटेशनल स्टेट मेंटेन करना चाहेगा. दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इट ट्राइज टू रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस तभी है जब वो किसी एक्सिस के अबाउट हो. सो दिस I which is equal to mr square, I have written this I about this axis of rotation, that is 1 dash, and this is the axis of rotation. So the value of mi is equals to mr square, where m is the mass of the particle and r is the perpendicular distance of the point particle from axis of rotation. So I is mr square, where m is mass and r is the perpendicular distance from axis of rotation. ठीक है, this is mi about 1 dash axis. Its SI unit is kg meter square and the dimensional formula is m1 L2 T0. Okay. Now mi for n discrete particle system. But so n discrete means you can differentiate between the particles. अलग अलग particle हैं. ठीक है, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, so I can count 50 students individually. Okay. So ये होता है discrete, अलग अलग particles.
For example, this is m1 particle at a perpendicular distance r1, this is m2 at a distance r2, m3, r3. Similarly, mn particle at a distance rn. So what will be the mi about this axis, that is 1 1 dash axis, is m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square. So it is summation I equal to 1 to I equal to m mi ri square. ठीक है. So moment of inertia for discrete particle system is summation means addition mi ri का square. I will vary from 1 to n. Next point is, ये mi का ही section है, चांतर लगे हुए इस पर. चांतर means it is important. mi depends on, mi किस पे डिपेंड करता है? It depends on the mass and also on the distribution of mass, that is on the position of axis of rotation. बच्चों मास तो समझ में आया कि it is depending on mass, but as well as on the distribution of mass. That means जितना मास जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, जितना मास जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, उस सिस्टम का mi उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. तो it depends on mass and on the distribution of mass only. And this is position of axis of rotation. You can also say कि जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर है, उसका mi उतना ही ज़्यादा होगा. ओके. नाउ mi does not depend on the rotational quantities like angular velocity, torque, angular momentum, angular displacement, angular acceleration. ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा. बहुत सारे फॉर्मूला, ये हमने सिर्फ आज चैप्टर स्टार्ट ही किया है. आगे आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि mi तो टॉर्क पे डिपेंड करता है, बस वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे F इक्वल टू ma होता है, तो बच्चों m इक्वल टू F बाई m. तो व्हाट डू यू थिंक दैट मास डिपेंड्स ऑन फोर्स और एक्सेलरेशन? नहीं, वो तो किसी भी बॉडी का फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता. सिमिलरली mi किस पर डिपेंड करेगा? मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर. इन सारी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. नाउ we are starting with the example. So first is compare mi. ठीक है. This is I1, this is I2. About this axis it is I1, about this axis it is I2. There are two identical rods. ये स्टार्ट हो रहा है वुड से और ये स्टार्ट हो रहा है आयरन से. The length of both the rods are same. हमको mi कंपेयर करना है. बच्चों अगर रॉड सिमिलर है तो फिर मास तो सेम ही होगा. तो फिर अब हमको सेकंड चेक क्या करना पड़ेगा? हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखना पड़ेगा. दैट मीन्स ज़्यादा मास ज़्यादा डिस्टेंस पर है. सो एज यू नो कि आयरन का मास वुड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा फॉर द सेम लेंथ. ठीक है. तो इस वाले अरेंजमेंट में आयरन ज़्यादा डिस्टेंस पर है. ठीक है. अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो इसका mi इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा. सो इट I1 विल बी ग्रेटर देन I2. ठीक है. यहाँ पर क्या है, आयरन का मास ज़्यादा है परंतु ये कम डिस्टेंस पर है. मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा मास ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो उसका mi भी ज़्यादा होता है. इट इज़ क्लियर कि I1 विल बी ग्रेटर देन I2. सेकेंड, अ वेरी गुड प्रॉब्लम. कंपेयर एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉट mi. नाउ यू हैव टू कंपेयर एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द सेम टॉर्क. आपने सेम टॉर्क लगाया. ऑल्दो ये वर्ड मैंने बोल दिया है टॉर्क, पर आने वाले लेसन में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा व्हाट टॉर्क इज. ठीक है. अभी ये जानो कि सेम फोर्स लगाया. ठीक है. ये दो अरेंजमेंट है, ये दो ट्रायंगुलर लैमिना है ऑफ इक्वल मास. दिस इज 1 1 डैश एक्सिस, दिस इज 2 2 डैश एक्सिस. यू हैव टू कंपेयर एंगुलर एक्सेलरेशन. बच्चों अगर सेम टॉर्क है, टॉर्क सेम है, तो अगर टॉर्क सेम है जैसे F इक्वल टू ma होता है इन द लीनियर मोशन, सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा. Force is similar to torque, mass is similar to moment of inertia, and linear acceleration is similar to the angular acceleration. Now बच्चों, if torque is same, that is I alpha should be equal to constant. That means जिस भी अरेंजमेंट में I का वैल्यू होगा ज़्यादा, उसका अल्फा होगा कम. They are inversely related. सो बच्चों ये बताओ कि क्या समझ में आता है कि 1 1 डैश के अबाउट mi ज़्यादा होगा या 2 2 डैश के अबाउट ज़्यादा होगा? देखो कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस तक है. तो देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक है, यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक है. दोनों का बेस सेम है क्योंकि लेमिना तो आइडेंटिकल है. पर यहाँ पर
फॉर 2 डैश एक्सिस ज़्यादा मास ज़्यादा डिस्टेंस पर, देखो ज़्यादा मास ज़्यादा डिस्टेंस पर है, जबकि 1 डैश के अबाउट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मास कम होता जा रहा है. सो इट इज़ क्लियर कि ज़्यादा मास ज़्यादा डिस्टेंस पर है, दैट इज आई ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन आई ऑफ 1, और जिसका आई है ज़्यादा उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा. सो अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2. क्लियर? ये क्लियर है कि 1 डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी कम है. अगर रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है दिस लेमिना अबाउट दिस एक्सिस विल रोटेट विद अ ग्रेटर एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. नाउ दिस द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग. ये बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है. यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये बता के नहीं बता रहा होगा, आपको अरेंजमेंट दिखा नहीं रहा होगा, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा. ठीक है. वहाँ पे तो सिर्फ थियोरेटिकल वे में लिखा हुआ आएगा कि यू हैव टू कैलकुलेट एम आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो कैलकुलेट एम आई अबाउट द गिवन एक्सिस if 4 identical point masses are placed at the corners of a square frame. ठीक है. ये there are 4 identical point particles are placed of a square frame of sides A. First is about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. ठीक है. So I'm talking about, so this is the axis of rotation. ठीक है. This is passing through a center and perpendicular to the plane. समझ में आ रहा है कि this is the axis of rotation. So mi about this axis will be, I'm writing here, about this axis. So it is m. Now बच्चों I'm writing the mi about about this. So this is a, this is a. So this distance will be root 2a, and half of root 2a will be a by root 2. ओके. सो इट विल बी एम ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर. ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? देयर आर 4 पार्टिकल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट कम्स आउट टू बी 4 एम ए स्क्वायर बाय 2, सो इट इज 2 एम ए स्क्वायर. क्लियर? नाउ सेकेंड इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वन ऑफ द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस. Now बच्चों mi of this particle will be 0 as the axis of rotation is passing from the particle itself. ठीक है. So I'm writing I about this axis. This is I1, that is the result of first part. Second is I2. So बच्चों for this axis of rotation this particle is at a distance of a, so it is m a square. This particle is at a distance of root 2a square, and this particle at a distance a, so it will be ma square. So it will be ma square plus 2ma square plus ma square comes out to be 4ma square. Okay. Now the third part about the diagonal axis. But your diagonal axis, that is this axis. So here there is no significance of saying perpendicular to the plane or in the plane, क्योंकि diagonal तो in the plane ही होगा. ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस. तो मेरे बच्चों दिस एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम दीज 2 पार्टिकल, तो इन दोनों का एम आई होगा 0. सिर्फ हमको इसका और इसका लिखना है. सो दिस पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए बाई रूट 2 एंड दिस इज ऑल्सो एट ए बाई रूट 2 डिस्टेंस. सो I3 विल बी m a by root 2 square plus m a by root 2 square comes out to be ma square. Okay. Now fourth is about an axis passing through one of the corner and parallel to the diagonal. That is I am talking about this axis. ऐसा ये वाला एक्सिस. ठीक है. समझ में आ रहा है? दिस एक्सिस. सो इस एक्सिस के लिए इसका एम आई होगा 0. लेट्स सपोज दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2 एंड दिस इज पार्टिकल 3. तो I4 विल बी, आई हैव टू राइट एम आई अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है. तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? ए बाई रूट 2. ठीक है ना. ए बाई रूट 2, ये वाला डिस्टेंस ए बाई रूट 2 है, ये वाला डिस्टेंस ए बाई रूट 2 है. सो फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस का होगा एम ए बाई रूट 2 स्क्वायर. सेकेंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ रूट 2a, सो इट इज एम रूट 2a होल स्क्वायर.
And the third way is ma by root 2 square. So it comes out to be 3ma square. So that's it for this lesson. Soon I'll come up with a next lesson which will having a lot of numerical practice. So keep watching and enjoy learning.